Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। And now we begin with the headlines, right, Sonu? Yes. Well, domestic stocks gain around 0.5% amid mixed global cues. Sensex closes above 53,000 mark. Nifty ends above 15,900 level. And Brent crude prices decline to trade below $74 per barrel mark. मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू सूचकांक 0.5% से अधिक की तेजी में रहे। सेंसेक्स 53,000 से ऊपर और निफ्टी 15,900 से ऊपर हुए बंद और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य कम होकर $74 प्रति बैरल के नीचे पहुंचा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 0.5% की तेजी से नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे। दोनों सूचकांकों में ये तेजी वैश्विक बाजारों के संकेत मिले जुले रहने के बीच आई। सेंसेक्स तेजी के साथ 53,000 के स्तर को पार कर गया। निफ्टी भी बढ़कर 15,900 से ऊपर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.48% की वृद्धि से 255 अंक बढ़कर 53,159 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.44% की बढ़त से 70 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 15,924 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.31% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.43% की वृद्धि दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today gained around 0.5% to hit new record highs. Both stocks climbed amid mixed global market cues. The Sensex gained to trade above the 53,000 mark and the Nifty gained to deal above 15,900 level. The BSE Sensex rose 255 points or 0.48% to close at 53,159. The NSE Nifty also added 70 points or 0.44% to finish at 15,924. In the broader market at BSE, the mid-cap added 0.31% and the small-cap index gained 0.43%. In the Sensex pack, shares of 17 companies climbed while 13 fell. HCL Tech was the top gainer as it surged 5.1%, followed by Larsen & Toubro, which gained 4.2%. Tech Mahindra rose 3.1% and HDFC Bank ended 1.5% up. On the other hand, Bharti Airtel and Mahindra both declined 0.8%. Asian Paints fell 0.6% and Titan slipped 0.5%. In the sectoral indices, shares of 11 out of 19 sectors climbed. Realty sector was the top gainer as it rose 4%. Capital goods climbed 2%. IT gained 1.2% and industrials extended gains of 1.1%. On the other side, oil and gas declined 0.9% and telecom fell 0.8%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,662 companies gained while 1,576 fell. Shares of 128 companies remained unchanged. So, Rajiv, are you there with us? Hello? Can you hear me? Yes, Rajiv. Welcome to the show. Rajiv, Sensex at 53,000 mark, and how do you explain it? What are the domestic factors? What are the global factors that have led to such a, one would say, wonderful, and it's been there around 53,000, more or less, 52, 53 for quite some time now. What do you attribute this robust ranking to?
See, for last few days, what has happened is that indication from US Fed has been that they are going to continue their, benign policy, and they will continue with their money printing, which has given confidence to emerging markets, and the flows to emerging markets have improved after a lull of, which happened during the period of early part of June. It is very likely that till the time US Fed keeps giving these kind of indications that they are likely to continue with the loose monetary policy and interest rates are not going to see a rise despite inflation being higher there. Yes. I think market probabilities are going to continue to move on up on the basis of the liquidity. तो राजीव, लिक्विडिटी आप कह रहे हैं कि एक मेजर फैक्टर है जो बाजार को बूस्ट दे रहा है। एक हम फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स देख रहे हैं, अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी बहुत उत्साहजनक हैं आईटी कंपनीज के। कैसे देखते हैं आप इन रिजल्ट्स को, और क्या आपको आशा है पूरे रिजल्ट सीजन से? देखिए, आईटी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसको कोविड-19 का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है जी। जो कंपनी डिजिटाइजेशन की तरफ शायद 2 साल में जाती है, उनको एक बहुत बड़ा पुश लग के वो अभी उन्होंने डिजिटाइजेशन करनी पड़ी है उन्हें, वो इंक्रीज हो रहा है उनका जो पेस है मॉडर्नाइजेशन का, मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल सिस्टम्स, आईटी एनेबल्ड सॉफ्टवेयर वगैरह। तो उसके चलते आईटी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो डील्स विन काफी ज्यादा होंगे। तो रिजल्ट और कुछ जो स्पेशलाइज आईटी में भी बहुत सारे स्पेशलाइज एरिया हो जाते हैं, वो रिजल्ट काफी बेटर आए हैं एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशन। तो वो आईटी के इनिशियली जो रिजल्ट आते हैं वो मोस्ट लाइकली जो है वो बड़ी कंपनीज के आते हैं, और वो इस बार जो आए हैं जो कमेंट्री रही है वो उम्मीद से ज्यादा बेटर की रही है। जो उन्होंने डील्स विन की दी है, जो उनके मार्जिन हैं वो शायद थोड़े से कमजोर हुए, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो है वो काफी उम्मीद से काफी बेटर है। और इवन स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के भी जो आईटी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट जो है वो बेटर आए हैं। आने वाले दिनों में जब हम देखेंगे एक थोड़ा सा जो तो आईटी से तो लगता है कि और बेटर नतीजे ही आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले विप्रो क्या है वो भी बेटर देन एक्सपेक्टेड थे। जो बाकी जो क्षेत्र हैं जिनका लगता है कि जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी ऑटो में और यहाँ बैंकिंग में, क्योंकि ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कि अप्रैल और मई में थोड़े इशू रहे थे। बैंकिंग में रिकवरी का जो था कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जो थी कॉस्ट वो थोड़ी सी ज्यादा थी। तो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ क्षेत्रों में, बैंकिंग में कह लीजिए आप, ऑटो में कह लीजिए, इनके थोड़े से रिजल्ट शायद उतने अच्छे नहीं आएंगे, लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखेगा। बट लार्जली ऐसा लग रहा है कि जून में जब लॉकडाउन खुला है तो पेस ऑफ रिकवरी मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में फास्टर देन एक्सपेक्टेड रहा है। तो आपको लगता है कि ये जिन सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं जो स्ट्रेस्ड हो सकते हैं Q1 में, Q2 में आपको आशा है कि वो भी उनके इम्प्रूव हो जाएंगे रिजल्ट? हाँ, उनकी उम्मीद है, क्योंकि जो अभी तक जो बिजनेस अपडेट कुछ कंपनीज ने दिए हैं एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई अपने क्वार्टर के बारे में, वो उनमें सब में एक ही इंडिकेशन है कि अप्रैल और मई तो खराब गए थे, लेकिन जून में जैसे ही चीजें खुली हैं रिजल्ट जो है वो बेटर आने शुरू हो गए। Rajiv, many market experts believe that the listed companies, the big companies, have gained at the expense of smaller businesses, especially in the unorganized sector. It is also being said that companies seem to have used the lower demand and greater liquidity and fiscal support during the pandemic to strengthen their balance sheets. What do you have to say on that? See, surely it has happened in some of the sectors, especially where you had essentially there was a tax arbitrage kind of a situation. Now this gradual shift had started happening after GST itself. There were certain sectors where there was a situation where smaller units or smaller companies, I should not use the word companies, but smaller players were able to avoid taxes. Now it's slightly tougher to do that, and what has happened is that the advantage which was because of that only has moved on to the larger companies, and see, cost efficiency and ability to withstand a shock, the kind of shock which lockdown brings in, is bigger with the larger companies.
Yes. So they were able to survive, they were able to cut their costs and still maintain their operations and gain market share, whereas smaller players were, kind of it that they didn't have that kind of a banking, wherewithal, in the sense banks won't give them that kind of a loan because they don't have the numbers on the book. See, the problem with these large number of these companies used to be that even if they were doing business, they were doing business in cash. So they never on the books had the ability of, to show that they can pay back the money. That is the reason why we have seen. But then the question is how much of that market share they can maintain. Maintain in the sense that will it be a permanent shift? In some cases, it might be a permanent shift. But in some of the sectors where, especially in the consumer goods, probably things would again, go back to a level where we might see some shares moving back to the unorganized sector. राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये 3 मेजर सेगमेंट्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में, एफपीआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड्स एंड डायरेक्ट रिटेल पार्टिसिपेंट्स, अभी इनका कंपैरेटिवली कितना योगदान है बाजार की जो तेजी है उसमें, और आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं आप? देखिए, अभी जो थोड़े से नंबर शायद जून में जो एसआईपी नंबर थे वो थोड़े से कम थे, लेकिन आई थिंक ये ब्रॉडली वॉल्यूम्स की बात करें तो आज की डेट में बहुत बड़ा जो योगदान है वो रिटेल का है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बिकॉज वो लार्ज कैप स्टॉक्स में की वजह से वो अभी भी जो वो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ही है. तो जहां तक मुझे लगता है, आई थिंक गिवन द फैक्ट कि बाकी कोई और एसेट क्लास तो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, इट इज वेरी लाइकली कि अभी हम देखेंगे कि फ्लोज टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट ज्यादा रहेंगे, या जब करेक्शन आएगी तो उस टाइम पे ये एक टेस्ट होगा इन्वेस्टर्स का. पिछली बार जब करेक्शन आई थी तो अगर आप देखें एसआईपी नंबर तो ऐसा नहीं लगा था कि बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने कुछ बाजार का साथ छोड़ा हो. जी, और जब भी बाजार ऐसे हाइस पे जाता है, ऑल टाइम हाइस पे है, ऐसे में वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ी चिंता होती है. अभी क्या स्थिति है अगर हम तीनों जो हमारे वर्ग हैं उनको देखें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्या स्थिति है? वैल्यूएशन थोड़ी हायर साइड पे, स्पेशली गिवन द फैक्ट के मिड और स्मॉल कैप में, गिवन द फैक्ट के जो लॉकडाउन की वजह से जो डिसरप्शन होगी स्मॉल और मिड कैप में भी बहुत ज्यादा कुछ अच्छे नतीजे नहीं आने की उम्मीद है. तो इसलिए वैल्यूएशन तो अभी कंफर्टेबल जोन में नहीं है. आप नहीं कह सकते रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज इन फेवर ऑफ वैल्यूएशन. सो दैट इज वन थिंग व्हाई रिटेल इन्वेस्टर्स नीड टू बी कॉशियस कि वो किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन के बाद जो की वजह से जब करेक्शन आती है तो बहुत शार्प जो है करेक्शन जो है आती है, इन द सेंस कि अगर आप देखेंगे कि जो डी रेटिंग होती है वो काफी शॉर्ट पीरियड टाइम में हो जाती है. तो वैल्यूएशन वाइज वी आर नॉट इन अ कंफर्टेबल जोन, एंड दैट इज द रीजन कि ऐसा लगता है कि इट्स बेटर जो कि निवेशक हैं वो लार्ज कैप की तरफ रहें और क्वालिटी कंपनीज की तरफ रहें, उन पे फोकस रखें, क्योंकि वहां अगर करेक्शन आएगी भी थोड़े दिनों बाद जब वापसी बाजार तेज होता है तो उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं जल्दी से रिकवरी आ जाती है एज कम्पेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप. अभी जो आप तेजी देखें 3 साल की मंदी के बाद ऑलमोस्ट स्मॉल कैप्स चले हैं. 2018 एंड के बाद 2021 में जाके स्मॉल कैप्स में थोड़ा कुछ जान वापस आई है. तो उसके वैसा ही ऐसे सिचुएशन अगर दोबारा आती है तो फिर वैसे ये लंबा दौर रहेगा जिसके अंदर स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं करेंगे. Rajiv, there are a few challenges that we are facing. One, of course, is the increasing international crude oil prices. The other is that there is an inflation problem. The consumer price index, India's benchmark inflation, grew at 6.26% in June, but which is crossing the cap of 6% set by the RBI. How do you see that affecting the markets in the near future? Because the demand will also it will dent the demand as well if it goes on like that. Yes, I mean, this is one of the big red flags as far as the crude oil prices are concerned, and I think there is nothing anyone can do as far as those concerned. The only thing is
one has to look at it, how sustainable is that those increasing prices are. Given the fact that except in China, the global growth is not very strong in real terms. Of course, when you compare last quarter to this quarter, YOY, all those comparisons, it's fine. It might show a spike, but the global growth is not there. So there is an element of, of speculative activity which has got built up into oil prices, which is pushing them up, and it can push them further. Now, coming to the inflation part, a part of inflation in India is caused by increasing oil prices. And there another reason why there is inflation has moved up is inflation in the metal and commodity prices. And that has happened because of the disruption in the global supply chain. It's very tough to get a shipping container. There was a massive shortage of containers globally. And the shipping rates went up through the roof in last, not now, but probably in April, maybe when we had a lockdown in Europe, where the major ports are placed. So there is an element of logistical disruption in the inflation. So when that gets through, commodity prices softening, then those probably inflation numbers are going to be settling down. So, look at the way the inflation has gone up in US. It's gone up to almost 4.5%, 5%. Yes. So that, there is a reason. I think there's a hope that oil prices should move, correct a bit and then stabilize around 60-65. But inflation, I think we'll have to wait. But yes, as you rightly said, crude oil price is one thing. If they spiral up further, then it's a problem both for the inflation and for the fisc. So राजीव, आपको लगता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो यूएस फेड के चीफ हैं जेरोम पावेल, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि इन्फ्लेशन इज लाइकली टू मॉडरेट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। जो इन्फ्लेशन को लेकर एक डर है इन्वेस्टर्स में, उसको थोड़ा सा वो करने के लिए ईज। देखिए, वाइल उनके पास जो है डेटा पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं एंड देन जो और इन्फॉर्मेशन जिसपे जो उनके पास जिसके बेसिस पे वो अपनी स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो ऑब्वियसली एक वन हैज टू रिलाई ऑन दैट. बट द फैक्ट इज दैट सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड टू ऑफ गोइंग रॉन्ग. इट्स नॉट के दे आर ऑल राइट. द प्रॉब्लम इज कि अगर यूएस में इन्फ्लेशन टिकी रहती है तो वो कितने दिन तक अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको लूज रखेंगे. थोड़ा सा शायद उन्हें बढ़ाना पड़ेगा. तो वो एक जब टाइम आएगा वो दूसरा रीजन होगा जब हम देखेंगे कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इमर्जिंग मार्केट से पैसा विड्रॉ होगा एंड वी माइट सी अ करेक्शन एंड अ शार्प एंड अ मेजर करेक्शन इन इमर्जिंग मार्केट. तो उम्मीद तो ये है कि वो जो कह रहे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ऑयल प्राइसेस ने इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करा जितना कंट्रीब्यूट डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई चेन ने करा. देखिए, जो ऑटो मेकर्स हैं उनके चिप्स सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, राइट, जिसके चलते आप ऑटो क्षेत्र में प्राइस इंक्रीज देख रहे हैं या प्रोडक्शन कट देख रहे हैं. तो एक स्पायरलिंग इफेक्ट होता है. वो अब आई होप ही इज राइट कि थोड़े दिनों में ठीक हो जाए. बट टू से कि जस्ट बिकॉज यूएस फेड से ऐसी स्टेटमेंट आया तो ऐसा होगा. आई स्टिल कीप माई थॉट प्रोसेस ओपन इन द सेंस कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेगेटिव फ्रंट भी सरप्राइज आ जाए उस वहां पे. सो राजीव, अगर ऐसा आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से हम निश्चिंत नहीं हो सकते, जो मॉनेटरी टाइटनिंग है उसके वहां यूएस में मॉनेटरी टाइटनिंग होने के और उसका जो एक रिपल इफेक्ट होता है उसके डर अभी भी बना हुआ है. तो आपको लगता है कि इन हाई लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए टू सम एक्सटेंट इन्वेस्टर्स के लिए? आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, जस्ट बिकॉज इंडेक्स 53,000 हो गया, सेंसेक्स एंड निफ्टी 16,000 हो गया, वो रीजन मतलब अगर बिजनेस ठीक चल रहा है, अगर आपको थोड़ा सा पैसा की जरूरत नहीं है तो आप उसको एक शेयर से दूसरे शेयर में मत निकाले. जो मेरा मानना है कि हाँ, इस लेवल पे कॉशियस रहिए और सिर्फ अच्छी कंपनी में निवेश करिए. और जब तक आपको कंपनी के बारे में नहीं समझ रहे तो बेटर है कि आप अपना एक्सपोजर थ्रू म्यूचुअल फंड रूट लें रादर देन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एंड दैट टू इन स्मॉल एंड मिड कैप. काफी सारे लोग जो हैं, अगर आप देखेंगे जो डीमैट अकाउंट्स के नंबर हैं वो दिखाते हैं कि आज इस महीने भी पिछले
2-3 महीने में काफी नए निवेशक बाजार से जुड़े हैं, वो उन लोगों को ये सब मैक्रो लेवल की चीजें मेजॉरिटी लोग नहीं समझ पाते और ध्यान नहीं देते। जब तक वो मीडिया में आती हैं या उनको लगता है ऐसा कुछ हुआ है, तब तक करेक्शन हो जाती है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप प्रॉफिट बुक करिए, मैं ये कहूंगा कि शायद आप अपने पैसे को क्वालिटी ऑफ द कंपनी जो है जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से करिए। हाँ, अगर आपने नीचे लिया है और थोड़ा बहुत अगर आप ट्रेडर हैं, आप मतलब 10% की करेक्शन मार्केट में इंतजार करके ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं, तो जरूर आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ऐसा नहीं है कि अगर 10% की करेक्शन के बाद नहीं बढ़ेगा। आपको याद हो तो जब 10,000 हुआ था इंडेक्स, तब भी लोग ऐसा ही होता था कि 10,000 हो गया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, आज 16 हो जाएगा। तब तो इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर। आप जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं, आप शेयर नहीं, आप एक बिजनेस का हिस्सा खरीदते हैं। यू बाय अ बिजनेस। व्हेन यू बाय अ बिजनेस, जब तक वो ठीक चल रहा है, उसके फैक्टर्स और आसपास की चीजें ठीक है जो उसके बिजनेस को ड्राइव करती हैं, देयर इज नो रीजन कि आप बिना बात के अगर जस्ट बिकॉज 200 वाला 300 का, अपना आईटी क्षेत्र के स्टॉक देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट उठा के देखेंगे तो इन्फोसिस 600 रुपए भी लोग कहते थे कि वैल्यूएशन में महंगा है, या आप स्टॉक्स लाइक नेस्ले वो 2017-18 में भी जिस पे पीई पे ट्रेड होता तो महंगा लगता था, 12,000-18,000 है। सो बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, यू डोंट मूव आउट टिल द टाइम यू रिक्वायर कैश फॉर समथिंग विच यू हैव सेव्ड फॉर, या आप कोई बिजनेस में उस क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम या फंडामेंटल चेंज हो जाए। बट ये जरूर ध्यान रखिए कि मिड और स्मॉल कैप में बोथ प्राइस पर्सपेक्टिव से और बिजनेस चैलेंजेस के पर्सपेक्टिव से देयर आर मोर इशू देन विच वी कैन इमेजिन, तो उसमें ध्यान रखिए। जी राइट। इस इन डेप्थ एनालिसिस के बाद अब रुक करते हैं करेंसी बाजार का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 4 पैसे की मामूली बढ़त से 74 रुपए 55 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.12% की मजबूती से 92.52 पर था। आपकी संक्षिप्त सी टिप्पणी चाहेंगे, रुपया 74-75 के लेवल पर स्टेबल है, सो एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से यू फील कि ये कंफर्टेबल एक लेवल है? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस आ सकती है अगर ऑयल प्राइसेस बढ़े, और कंफर्टेबल तो है लेकिन बाकी करेंसी जो है थोड़ा सा डिवैल्यू, जो वहाँ के सेंट्रल बैंक है ज्यादा अग्रेसिव है, तो अगर थोड़ा सा घट भी जाएगा तो आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू बी एन इशू। बट ऑयल प्राइसेस के हिसाब से थोड़ा सा इशू इन्फ्लेशन में ऐड कर सकता है। जी, आइए अब चलें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। एक तरफ स्थानीय कोविड-19 संक्रमणों पर चिंताओं और दूसरी तरफ तुलनात्मक रूप से मजबूत चीन के आंकड़ों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल का रुख सहयोगी बने रहने से मिले समर्थन के बीच एशियाई बाजारों में रुख मिला-जुला था। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1% के उछाल में रहा और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.8% की वृद्धि दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.7% बढ़कर बंद हुआ, लेकिन सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.4% की गिरावट में रहा और जापान का निक्केई सूचकांक 1.2% गिरकर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां अंतर दिवसीय कारोबार में गिरावट का रुख था। लंदन का फुटसी 0.9% के नुकसान पर था। फ्रांस के कैक में 1% की मंदी थी और जर्मनी के डैक्स में 1.2% की गिरावट चल रही थी। Now look at the U.S. markets. Well, the U.S. equity indices ended mixed yesterday. The Dow and the S&P 500 ended with marginal gains in a choppy session amid investors' balanced worries about inflation with reassuring comments from Fed Chair Jerome Powell. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both closed 0.1% up, while the Nasdaq Composite Index slipped marginally by 0.2%. राजीव, आप क्या कहेंगे, जो बॉन्ड यील्ड्स है वो 1.4% के नीचे आ गई हैं, सो फॉर द टाइम बिंग आपको लगता है कि स्टेबिलिटी लौटी है बाजारों में, शेयर बाजारों में? फॉर द टाइम बिंग ये लिक्विडिटी का फैक्टर जरूर कहूंगा, बट स्टेबिलिटी आई डोंट थिंक सो। आई थिंक देयर जो वॉलेटिलिटी है प्रॉब्ली या कुछ दिनों वहां पे देखिए यूएस में भी अर्निंग सीजन चल रहा है, सो वहां पे भी जो नतीजे आए, जैसे कल वहां पे कुछ बड़े लार्ज बैंक्स के नतीजे आए थे और एक बड़ा मिला जुला सा रुख रहा वहां पे बैंकिंग स्टॉक्स में। आई थिंक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का एलिमेंट जो है
वो ग्लोबल मार्केट में शुड रिटर्न आइदर बाय नेक्स्ट वीक और इवन बिफोर दैट. सो दो बायर्स जो है अभी भी अंडर करंट बुलिश रहेगा गिवन द फैक्ट जो स्टेटमेंट कल यूएस फेड से आई है. उसके बाद लेकिन वॉलेटिलिटी प्रॉब्ली वैल्यूएशन की वजह से भी शायद थोड़ी सी बढ़ सकती है. All right. Well, the Indian Academy of Highway Engineers, IAHE, under the Ministry of Road Transport and Highways, has inked an agreement with University of New South Wales, Australia, for setting up a Centre for Advanced Transportation Technology and Systems in Noida, Uttar Pradesh. The agreement was signed in a virtual ceremony today in the presence of Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari. Speaking on the occasion, Mr. Gadkari said the project will help improve the road safety scenario in the country. The agreement is for a project for capacity building, technology transfer and creation of enabling environment for establishment of Centre for Advanced Transportation Technology and Systems in IAHE. The University of New South Wales will also deliver a course on smart transport systems and modelling. And now a look at the oil. Well, the oil prices today fell more than 1.5%, extending losses as investors braced for more supplies following a compromise between top OPEC producers. A rise in the U.S. fuel stocks also raised concerns about demand in the world's largest consumer. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $73.60 per barrel, while WTI crude prices were around $71.80 per barrel. क्या कहेंगे राजीव, आप ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है बिटवीन टॉप ओपेक प्रोड्यूसर्स, इसका इमीडिएट क्या इफेक्ट होगा? क्या जो सप्लाई कट्स थे वो विड्रॉ हो जाएंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी बाजार में? किस तरह से इफेक्ट करेगा प्राइसेस को? देखिए, मुझे लगता है कि ये शायद इतना जल्दी जो लोग जो अपनी जो वायदे रखते हैं वो कोई ना कोई तोड़ने के लिए जरूर आ जाता है. बट होपफुली आई एम होपिंग के बिकॉज इसमें एक एलिमेंट ऑफ स्पेकुलेटिव मनी इन्वॉल्व है तो शायद ऑयल प्राइसेस हो जाएगा. बट आई डोंट वो उस बात के लिए मैं जाऊंगा कि सप्लाई कट वो लोग जो है वो सप्लाई को रिस्टोर कर देंगे. आई थिंक उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये देखना है कि वेदर द इरानियन ऑयल फाइनली कम्स बैक टू द ग्लोबल मार्केट और नॉट. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर देन एनीथिंग एल्स. और भारत के पास बार्गेनिंग पावर कितनी है? ब्रीफली, मतलब वी आर वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टर्स. जैसे अभी हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो कंट्रीज से बात कर रहे हैं प्राइसेस को नीचे लाने के लिए. आपको लगता है कि भारत के पास मार्जिनल सा इम्पैक्ट होता है इन चीजों का, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं फैक्टर्स हैं जो कि वो अगर प्राइसेस ऊपर जो है ऊपर जिसको खींच के रखते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत मेजर इम्पैक्ट हो पाएगा. बिकॉज फाइनली इट इज अनदर वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे. हम अपने एंड दे आर दी लार्जर नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व एंड द प्लेयर इन्वॉल्व, क्योंकि प्राइस कोई भी एक इंसान या एक कंट्री डिसाइड नहीं कर सकता, दो भी नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर अदर्स हु मे नॉट एग्री टू व्हाट इवन द लार्जेस्ट प्लेयर वुड वांट और सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर वुड वांट. आइए चलते हैं बुलियन मार्केट्स की ओर. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने में तेजी के बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 20 रुपए बढ़कर 48,320 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था. सितंबर में आपूर्ति वाली चांदी का मूल्य लगभग 70 रुपए के उछाल से 69,480 रुपए प्रति किलो के करीब था. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,826.10 प्रति आउंस पर था और चांदी भी बढ़त के साथ $26.30 प्रति आउंस पर थी. समय समाप्त हो रहा है तो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए. धन्यवाद सोनू. और चलते चलते before we end, Sonu, before we end, the reminder of the headlines. Well, domestic stocks gain around 0.5% amid mixed global cues. Sensex closes above 53,000 mark. Nifty ends above 15,900 level. And Brent crude prices decline to trade below $74 per barrel mark. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalema Aneja Dank and my co-anchor Sonu Sood bidding adieu. Namaskar. Namaskar.